السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے لاہور میں مقیم اپنے گھر میں آئسولیشن میں محترم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات کی میرے ساتھ، میں کافی اداس ہوا تھا۔ آپ کی محبت سر، ویسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ نیک مطلوب ہوں میاں صاحب؟ جی نیک مطلوب ہوں۔ تسی انٹرویو کرنے یا اردو دی کلاس پڑھانی؟ میاں صاحب آپ میں وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی میں اپنے گھر کے سٹڈی روم میں بیٹھا ہوں، آپ جوش و جذبے کی بات کر رہے ہیں، میں کوئی بارڈر سے انٹرویو نہیں دے رہا۔ بہرحال جنید صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے تھرو پوری عوام سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس وقت بڑی پریشان ہے یہ وائرس کی وجہ سے، اور ان کی پریشانی ڈبل اس لیے ہے کہ وائرس بھی پھیلا ہوا ہے اور ان کے سر پہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے۔ سر آپ کا تجربہ تو ڈینگی مارنے کا تھا، آپ کیا کر سکتے تھے؟ دیکھیں غوری صاحب، جی میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شہباز شریف نے ڈینگی پہ کنٹرول کر لیا تھا۔ جی بالکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس جب پھیلا ہے، اگر اس وقت آپ کا یہ خادم وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا، بلکہ یہ تو بات پرانی ہو گئی ہے، اگر آپ کا یہ خادم وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تو یہ جو ڈینگی مارنے کا تجربہ ہے میں نے اسی کو استعمال کرنا تھا، بس یہ کرونا وائرس کو ڈینگی میں تبدیل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑنی تھی۔ یعنی پہلے آپ کرونا کو ڈینگی میں تبدیل کرتے پھر ڈینگی مارتے؟ جی 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 صاحب، یہ ہو جاتا ہے جیسے آپ سائیکل کو موٹر سائیکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی موٹر لگانی پڑتی ہے۔ تو ہم نے یہ کرونا وائرس کو ڈینگی کی چھوٹی سی موٹر لگانی تھی بس۔ یہ تو وہی ہوا نا، کسی نے پوچھا بھیڑیں گننے کا آسان طریقہ بتاؤ، اس نے کہا پہلے بھیڑوں کی ٹانگیں گن لو پھر اس کو 4 سے تقسیم کر دو۔ دیکھیں یہ تو کسی نیازی حکومت کے وزیر کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ بھائی اگر بھیڑیں گننی ہے تو سر گن لیں، ٹانگیں ضرور گننی ہیں۔ مگر جنید صاحب، میں نے جو فارمولا پیش کیا ہے وہ اس لیے پیش کیا ہے کہ کرونا چونکہ قابو میں نہیں آ رہا اور ڈینگی ہمارے قابو آ چکا ہے، اس لیے میں تو کرونا کو ڈینگی میں تبدیل کر کے تو اسے پھر آسانی سے مارنے کا کلیہ بتا رہا ہوں۔ اچھا میاں صاحب، بھیڑوں سے یاد آیا، آج کل آپ کا ایک بیان بہت زیر گردش ہے میڈیا میں۔ میں آپ کو بھیڑ لگ رہا ہوں؟ بھیڑوں سے کیوں میرا بیان یاد آیا؟ میرا سوال تو سن لیں جنید صاحب، ہم بیماری کی وجہ سے لندن گئے ہیں، ہم بھیڑ نہیں ہوئے، صحیح، یہ یاد رکھیں۔ اچھا میاں صاحب، آپ سے جب نیب والوں نے آپ کے ذرائع آمدن پوچھے ہیں تو آپ نے بتایا کہ آپ کا سب سے بڑا جو ذریعہ آمدن ہے وہ 10 بھینسیں ہیں، آپ ان 10 بھینسوں کے دودھ پہ گزارا کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں یہ جو نیازی صاحب نے کٹا پال سکیم شروع کی تھی، یہ میرے ہی اس کاروبار کو دیکھ کے انہوں نے نقل کیا تھا۔ زبردست۔ جنید صاحب، میں اللہ کے فضل سے آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کم از کم 10 پیسے ہوں تو آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہیں تو میاں صاحب، آپ کا دودھ جو ہے وہ زعفران کے بھاؤ بکتا ہے۔
जुनैद साहब सिर्फ दूध की बात नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है कि खालिस दूध आपको कहीं और से नहीं मिलता सिवाय मलक शहबाज शरीफ के, सॉरी मेरा मतलब है शहबाज शरीफ की डेयरी से खालिस दूध आपको नहीं मिल सकता। और दूसरी बात यह है जुनैद साहब कि मैं सिर्फ खाली दूध नहीं बेचता जी, 10 भैंसों का दूध और फिर उसमें से मक्खन निकालना और फिर उसमें से देसी घी बनाना और फिर जुनैद साहब मेरी तो लस्सी इतनी मशहूर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब जब मैं लस्सी बनाता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हुआ होता है, ऐसी कमाल अंदाज में लस्सी दंग दंगी यका दंग दंगी यका टान 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 टान। तो ये जो टान 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 है, ये सुनने के लिए उधर रश टन 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 इकट्ठा हुआ होता है। और मैं एक और आपको बात बताऊं, ये खास तौर पे ये गोगा जी कान खोल के सुन ले। अच्छा, मैं इस तरह का कोई मुफ्त पर जो ढोल पकड़ के मुफ्त लस्सी लेने आ जाता है, मैं उसको अपने डेयरी फार्म के सामने से भी नहीं गुजरने देता, क्योंकि मैं खालस लस्सी, खालस दूध की और खालस दही की लस्सी मैं बेचता हूँ। मियाँ साहब भैंसों का दूध भी खुद धोते हैं आप? तेनू सिर्फ खान पीन नाल गर्जे, तेनू और कुछ पता नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं खालस दूध बेचता हूँ, मेरे दूध को धोने की जरूरत नहीं होती। मियाँ साहब मैं पूछना पिया कि मज्जा आप चुंदे हो? हाँ, वो बात आपने ठीक पूछी है। मैं शुरू में जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था उस वक्त तो मैं खुद दूध धोता था भैंसों का, मगर मेरा ख्याल है कोई 6 या 7 महीने हुए होंगे मुझे ये दूध बेचते हुए और भैंसों का दूध धोते हुए। बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है, बूरी भैंस थी, बूरी, उसने इस कदर बेदर्दी से दुलत्ती मारी कि आज भी मेरे घुटने में कभी कभी दर्द होती है। और यकीन माने कि मुझे उस दर्द की इतनी तकलीफ नहीं है जितनी मुझे आज भी याद करके इस बात की तकलीफ होती है कि उसने साथ 8 किलो खालस दूध की बाल्टी भी उल्टा दी थी। और जुनैद साहब मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने खालस दूध सफेद, चिट्टा सफेद जमीन पे ऐसे गिरा हुआ फैला हुआ देखा है तो एकदम मुझे याद आया कि बोर्ड के नीचे बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। मैंने जल्दी से उसके बच्चे उठा के दूध के ऊपर छोड़ दिए हैं। मैंने कहा खालस दूध जाया नहीं होना चाहिए, चलो कम से कम जिंदगी में एक दफा ये बिल्ली के बच्चे ही पी ले। वाह जबरदस्त, इसे कहते हैं गवर्नेंस। बहुत अच्छे जुनैद साहब, जिस शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के आज भी चर्चे हैं वो तुसी बिल्ली दे बलूंगड़ियां ते पा देती है। चलो मियाँ साहब शुक्र है जिन्ना खालस दूध जमीन ते फैलिया सी किसी ने तीली नहीं सुट्टी। बहुत अच्छे गौरी साहब, ये मुझे लगता है कि किसी ने दूध पे तीली फेंकी थी तो आपका ये असर हुआ हुआ। मियाँ साहब 10 भैंसों से इतनी जायदाद, इतने कारोबार, लंदन में जायदादें कैसे मुमकिन है? साहब ये जो लंदन की सारी प्रॉपर्टी है ये तो जिस आमदन से बनी है वो मैं आपको बताना भूल गया। जी जी, ये मैं लस्सी पे ही बात खत्म नहीं कर रहा। जुनैद साहब एक और प्रोडक्ट जो मुझे भैंसों से हासिल होती है जी जी, और उस हवाले से मैंने अल्लाह के फजल से जो कारीगर रखे हुए हैं उनका निशाना इतना पक्का है कि पूरी दीवार भरी हो, बीच में सिर्फ 1 फुट की सर्कल जगह हो तो दूर से अपनी प्रोडक्ट फेंकते हैं तो वो जाके सीधा खाली जगह पे चमकती है। कौन सी प्रोडक्ट मियाँ साहब? जुनैद साहब मैं अल्लाह के फजल से
5 कल्याण भैंसों के गोबर की बात कर रहा हूँ। ओए, अच्छा यानी आप पाथियां बेचते हैं? तो मियां साहब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती हैं? जुनैद साहब, आपका ताल्लुक तो अशराफिया से है। ये आप पूछ के देखें, ये अशरफ के लड़के थैले से ये गरीब आदमी के जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को तो सिलेंडर घर पहुंच जाते हैं जी। अगर ये पाथियों का सिलसिला ना हो तो गरीब आदमी बेचारा तो हंडिया पकाने से बैठा रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा मियां साहब, आपके मुखालिफिन एक अरसे से ये शोर मचा रहे थे कि जनाब मियां साहब अगर सच्चे हैं तो बरतानवी सहाफ़ी के खिलाफ हरजाने का दावा दायर करें किसी बरतानवी अदालत में, जिसने आप पर इल्ज़ाम लगाया था जी कि ज़लज़ला ज़दगान के जो इमदादी रकूम है वो उसमें आपने खुर्द बुर्द किया है। तो अब तो माशाल्लाह आपने दावा दायर कर दिया है, तो क्या आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जुनैद साहब, अब मैं बुरे के घर तक पहुंचूंगा। जबरदस्त। मैंने तो दावा दायर कर दिया है। अब ये जो कहने वाले थे कि अगर ये दावा दायर करेंगे तो ये सच्चे हैं, अब तो उनको शर्मिंदा होना चाहिए। जबरदस्त। ये जो अकबर सम्राट है, क्या नाम है इसका, ये जो शहजाद अकबर। हाँ, ये शहजाद असगर जो है, शहजाद अकबर सर। जी यही अली अकबर जो है, इसको ये जो बिठाया हुआ है नियाजी साहब ने, सिर्फ बोलने के लिए बिठाया हुआ है, ना कोई इसका काम ना काज। अब इसको चाहिए कि माफी मांगे, पूरी कौम के सामने माफी मांगे कि मैंने शहबाज शरीफ पे गलत इल्जाम लगाया था। ये इसकी बात के पीछे आप लोग लग जाते हैं जुनैद साहब। ऐसा आदमी तो समोसे ले जाए तो दुकानदार साहब कह देता है कि चटनी खत्म हो गई हुई है। और फिर ऐसे आदमी को समोसे भी खुश्क खाने पड़ते हैं। ऐसा आदमी तो जुनैद साहब घर से हर दफा इसलिए बेइज्जती करवा लेता है कि खुद सब्जी फरोश को कह देता है कि आलू मीठे देना, मीठे। उसे यही नहीं पता होता कि मीठे आलू पकाने के काबिल नहीं होते। ऐसा आदमी तो जुनैद साहब घर में एयर कंडीशन उल्टा लगवा के तो गर्म हवा की वजह से एयर कंडीशन कंपनी पे दावा कर देता है कि पैसे आप ठंडी हवा के ले रहे हैं और एयर कंडीशन में से गर्म हवा आ रही है। अच्छा मियां साहब, ये फरमाए कि आपने खुद रिक्वेस्ट करके, दरखास्त करके कौमी असेंबली का इजलास बुलाया कोरोना के इंतहाई सीरियस मसले पे, लेकिन आप खुद उसमें शरीक ही नहीं हुए। जुनैद साहब, मैं आपको ये कई दफा वाजे कर चुका हूँ कि मैं पेशेंट आदमी हूँ। आपको तो मैंने 1 to 1 भी बताया था, बल्कि आपने कहा था कि ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे मालूम था, मगर मैंने कभी आपके मुंह से नहीं था सुना। मैं बड़ी सीरियस डिजीज का पेशेंट हूँ, मैं इसलिए वहां नहीं आया। मगर शर्मिंदा तो न्याजी साहब को होना चाहिए, जो इतने बुरे और गंभीर हालात में भी ईवान को अपने बैठने की जगह या बैठने के काबिल नहीं समझते। मियां साहब, अगर नियाजी साहब नहीं आए, आप भी तो नहीं आए, इजलास तो आपने बुलाया था। ओ यार, मैंने अगर इजलास बुलाया था तो इसलिए बुलाया था कि नियाजी साहब ईवान में तशरीफ लेके जाएं। मेरी वहां पे कोई इस कदर जरूरत नहीं थी। ये जो दूल्हे की एचकन सीता है दर्जी, उसका बारात के साथ जाना जरूरी नहीं होता। मेन किरदार तो दूल्हे का होता है, दूल्हे को तो जाना चाहिए। दर्जी जावे ना जावे होती तो खैर है यार, दर्जी की क्या इतनी जरूरत है बारात में, उथे केड़ा दूल्हे की कमीज पाड़ जानी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ आसार ऐसे जरूर हैं अजीजी भाईजान द ग्रेट, जिससे अंदाजा होता है कि कोरोना के बाद यानी पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है वो कैसी होगी। कुछ आसार जरूर नजर आ रहे हैं।
अच्छा गोगा जी, इस वक्त पूरी दुनिया में गोगा से मैंने बाद में गोगा कहता जी सर फौरन दानिश्वर बन गया ना आगे से, तो पता नहीं कौन सी अहम बात है जो मेरे साथ करने लगे। गोगा जी, मैं आपको ये बताने लगा था कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा सवाल किया जा रहा है वो ये है कि कोरोना के बाद दुनिया कैसे होगी, और उससे भी ज्यादा वैसे ये सवाल किया जा रहा है कि कोरोना कब खत्म होगा। कोरोना कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये तो एक दूसरा मौजू है। लेकिन कुछ आसार ऐसे जरूर हैं अजीजी भाईजान द ग्रेट, जिससे अंदाजा होता है कि कोरोना के बाद यानी पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है वो कैसी होगी। कुछ आसार जरूर नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ खौफनाक चीजें भी हैं और बहुत सारी मस्बत चीजें भी हैं। हाँ जी, जाहिर है मुआशी हवाले से मुल्क बहुत पीछे चले गए और बहुत सारे मुल्क चले गए। टाइम लगेगा रीगेन करने के लिए। फिर ये अल्लाह करे इसकी दवाई जो है वो बन जाए, वैक्सीन, इसका इलाज जो है वो निकल आए, वरना ये कहते हैं कि प्रोलॉन्ग कर गया तो फिर बड़ा खतरनाक। अच्छा, ये जो है ना, ये इसके जो माशी हालात हैं, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो इसलिए थोड़े से उसमें हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, या ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वो इसलिए कि ये एक बहुत मुद्दत बाद एक पहला क्राइसिस है या इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसमें कोई 2-4 मुल्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक बर्रे आज़म या 2 बर्रे आज़म इन्वॉल्व नहीं है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। तो इसलिए पूरी दुनिया मिलकर ही इस ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे निकलने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी निकालना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, अब आते हैं हम के जो ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड है, ये दुनिया जो है ये कैसी होगी। उसमें जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे FDA की लगी है, जो अमेरिका का इदारा है, उसने कहा है कि एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोरोना के बाद दीगर बीमारियों के हवाले से इंसान कहीं ज्यादा मोहतात हो जाएगा और दीगर बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि इस बीमारी के नतीजे में हर इंसान ने 2-3 चीजें तो सीख ली हैं। एक सोशल डिस्टेंसिंग सीख ली है, एक सफाई सीख ली है, बहुत ज्यादा मोहतात रहना सीख ली है, बीमारी से डरना सीख ली है कम से कम। मतलब ये जो 4 बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा कंटेजियस हैं, फैलती हैं, जिसमें निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, TB है, हेपेटाइटिस है, तो इन बीमारियों के नतीजे में जो अखराजात पूरी दुनिया को करने पड़ते हैं उनमें भी कमी वाक़ई होगी और मरीजों की तादाद में भी यकीनन कमी वाक़ई होगी। जी, मोहतात हो गए हैं लोग, इंसान बड़ा डर गया और ये खौफ बड़ा फैल गया, क्योंकि इन 4 अमराज में दुनिया भर से 6 करोड़ लोग सालाना मुब्तला होते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। देखो, बात ये है कि ये अक्लमंद लोग कहते हैं कि नुकसान से इंसान सीखता है, नुकसान से नाकाम नहीं होता बल्कि तरक्की का रास्ता मिल जाता है। तो नो डाउट इस वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो पोजीशन बनी है इंसान का, लिविंग वे जिस तरह चेंज हुआ है, या जो कुछ यहाँ पे नजर आया है हमें मुशाहिदे में भी, तजुर्बे में भी, उससे वाकई काफी कुछ सीखेंगे और उससे बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। और इसमें एक जो सबसे अहम चीज हमें नजर आई है वो ये भी है कि पोल्यूशन की कमी किस तरह की जा सकती है। ये हमने पहले भी जिक्र किया था, पता नहीं किसी साइंटिस्ट ने या किसी प्रोफेसर ने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को हर 3 महीने बाद 6 दिन का यानी 1 हफ्ते का लॉकडाउन पूरी दुनिया में राइज कर देना चाहिए मुस्तकिल। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि दुनिया बाद में कैसी हो जाएगी। ये जो पोल्यूशन में कमी है, ये तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम उसी तरह गाड़ियां दौड़ाएंगे, उसी तरह फैक्ट्रियां चलेंगी। लेकिन ये तुम्हारी बात ठीक है कि उसके नतीजे में हमें उसके बाद एहसास जरूर होगा, हमें तमाम बातों का एहसास होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये लागू कर दिया गया ये लॉकडाउन, जिस तरह वो बात हुई है, बात चल निकली है तो जाने कहां तक पहुंचे। अगर ये तोड़ पहुंच गई कि वाकई लॉकडाउन हो जाना चाहिए हर 3 महीने बाद, तो ये भी शक्ल एक बदल जाएगी। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बारे में है वो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसने बड़ी जबरदस्त बात की है। पता लग गया ना क्या कह रहा बात तुमने गोगे से शुरू की थी। गोगा पूरी तरह इन्वॉल्व है। वो इस वक्त
ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुका है। गोगा सिर्फ कुर्सी में इन्वॉल्व हो जाता है। यार ऐसे नहीं फजूल बोलते जाते, उसके खराटों की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। मैं पीछे कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई है। इसने कहा है कि कोरोना के बाद लोगों को अब किफ़ायत शारी की अहमियत का पता चले। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि जी यूरोपियंस को तो पता ही नहीं होता, यूरोपियन जो जितना कमाता है वो छुट्टियों में खर्च कर देता है, और पाकिस्तान में किफ़ायत शारी जो है वो जो बॉटम के सबसे नीचे के 10 मुल्क हैं दुनिया में, उनमें हमारा शुमार होता है, टका नहीं बचाते हम। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि अब दुनिया को पता चलेगा कि किफ़ायत शारी की अहमियत क्या है, बचत की अहमियत क्या है, और वो बचत के आदी हो जाएंगे। तीसरी तरफ फिर एक ये भी है कि ये जो बिला जवाज गैर जरूरी शॉपिंग है इसमें भी कमी देखने में खवातीन को भी एहसास होगा कि जरूरी नहीं कि साल च 80 सूट ही बनाए जाएं। वो एहसास तो ये 2 दिन में ये जो नरमी हुई है लॉकडाउन में तो पता चल गया है ना। 2 दिन में खौए से खौआ चल रहा था वाकईतन। वो मियां असलम इकबाल साहब जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, कलप रहे थे, बाकायदा उनके मुंह से आंसू झड़ रहे थे कि खुदा के लिए कुछ खौफ करो, खुदा के लिए कुछ खौफ करो। ना ताजरों को एहसास है, ना अवाम को एहसास है कोरोना खत्म नहीं हो गया, कोरोना खत्म नहीं हो गया। तो वो तो हमने साबित कर दिया है कि हमें कोई एहसास नहीं है, ना हमें डर है किसी चीज का। एहसास तो हमें ये है कि हमारा अब मास्क महंगा हो गया है, हमारा सैनिटाइजर गायब हो गया। ये तो अल्लाह ही रहमत कर दे और माफी दे दे। अल्लाह पाक हमारे इस बेवकूफी की भी हमें माफी दे दे। ये कब हम समझ। अच्छा, ये एक सबसे बड़ी बात जो अच्छी बात एक्सपेक्ट की जा रही है, सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी और छोटी छोटी सब कौमों को पता चल जाएगा कि डिफेंस पे पैसा कम खर्च करना है, सेहत पर ज्यादा करना है। लोगों की जो पहली तरजीह है अब आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला हेल्थ होगी। अभी हम देख ले, अभी हम पर जब ये मुसीबत पड़ी है तो हमने देखा है कि हमारे पास सिर्फ 1700 वेंटिलेटर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते कहीं बाहर से आए, कहीं खुद बनाए हमने, तो हजारों की तादाद में पहुंच गए। अभी भी हमें कई गुना ज्यादा चाहिए। अब हम इससे पहले इंपोर्ट करते थे, इन चंद दिनों में हमें इसकी अहमियत का पता चला। अब हम उन मुल्कों में शामिल होने जा रहे हैं जो वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है हमारे लिए आने वाले दिनों में सेहत, अपना जो ओवरऑल जो सेहत का स्ट्रक्चर है वो हम बेहतर बनाएंगे, सारे मुल्क बनाएंगे, इसके सिवा चारा कोई नहीं। तो यार इस आइसोलेशन में लोगों को ये तक एहसास हुआ है कि ये की गुफ्तगू सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात जो ये मैंने बता तो दिया, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात बड़ी को है, इससे बड़ी बात भी है कि दुनिया भर के अजीजियों को अब बर्तन धोने में, झाड़ू देने में, घर के काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि करेंगे। बल्कि बहुत से दूसरे लोग भी ये बन चुके हैं इन दिनों में। अय्यियों की तादाद में इजाफा हुआ, ये भर्ती हुए हैं बहुत लोग जो हैं वो जर्नलिस्टिक छोड़ के ये भर्ती हो गए, पीर भाई हुए। साथ बर्तन धो रहे होते, साथ खबरें पढ़ रहे होते। इतने अजीजी ना हो, टिड्डी दाल हो गए यार। टिड्डी दाल नहीं, ये दाल। अच्छा जी, एक और बड़ी अच्छी बात जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि इन 2 महीनों के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, वतन अजीज में 65,000 शादियां इंतहाई सादगी के साथ हुई। ये अगर कंटिन्यू हो जाए, इसका इम्कान तो कम है। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि ये पोस्ट कोरोना दुनिया कैसी होगी, तो ये उसमें तो नहीं आता मेरा ख्याल। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, वही बैंड बाजे, वही झाका तो उतर गया। सादगी नाल भी जेडी शादी होवे, रिजल्ट ओदा भी ओही निकलदा है। राज केड़ा तुसा गवाच जाने। तो अगर रिजल्ट वही है तो व्हाई यू आर स्पेंडिंग मनी मोर देन योर बजट। अच्छा जी, एक और बात जो अच्छी बात, कोई एडी वाह वाली गल नहीं थी। अंग्रेजी ते पुत्र हुण कच्ची दे बच्चे भी बोल रहे हैं। अच्छा, एक और बात जो अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये है कि दुनिया एक अरसे से जरासीमी हथियारों से खौफजदा थी। गुमान ये किया जा रहा है, यानी यूं कहना चाहिए इस खुशगुमानी का इजहार किया जा रहा है कि आइंदा कोई बड़ी ताकत भी जरासीमी हथियार बनाने से पहले 1110 मरतबा सोचेगी। क्योंकि इस वक्त जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थीरीज चल रही हैं कि जनाब ये उस मुल्क ने किया, उस मुल्क ने किया,
सारी थ्योरीज का जो एंड पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं गेम जो है वो उल्टी पड़ी है। चाहे अमेरिका, चीन, फलां जिसने भी किया है गेम थोड़ी बहुत उल्टी पड़ी है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला नहीं, बहुत काला है भाईजान, इतना काला गौरी साहब, इतना काला कि मैं बता ही नहीं सकता। मैं तो मिसाल दे के फंस गया हूँ। गौरी पे क्यों स्ट्रेस दे रहे? ये गौरी की बददुआ है, ये कोरोना। एक दफा हर ड्रामे में गौरी को कहते थे हाथ मुंह धोया कर, हाथ मुंह धोया कर। और सारी दुनिया लगी है ना हाथ मुंह धो। अजीजी मैं उस दिन से इजी हूँ, मैंने हाथ धोने छोड़ दिए, हुन लोकी धोण गए मेरे सामने। मुझे पता लग गया कि कोरोना क्यों नहीं कंट्रोल हो यार, धो लो। यार मैं तो एक इंतहाई साफ सुथरा और स्मार्ट आदमी है, ये है मैं उसके साथ जुगत पानी करता। ये इनको पता नहीं जितनी बातें बताई हैं इतने वो मेरे में पहले ही हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई जो ज्यादा पैसे नहीं देता उन्हें बहुत अच्छी सब्जी ना सही बुरी भी तो ना दो। ये परसों आप लोग भिंडी दे के गए, उसमें से कीड़े निकल आए जी। तो भिंडी चो कीड़ा ही निकलना और भिंडी चो बेक निकलनी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात माशरे के एक ऐसे किरदार से करवा रहे हैं जिससे आम तौर पे लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत सारी शिकायत लायक हैं। एक सब्ज़ी फरोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो इन्होंने बताया था आपने सब्जी ले ली है। नहीं, सब्जी नहीं लेनी, कुछ शिकायत का जिक्र करना है आपसे। किसकी शिकायत? जो पब्लिक को आप लोगों से है। मेरे से किसी को क्या शिकायत हो सकती है? मैं तो गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेच के घर चला जाता हूँ। गरीब आदमी ही का सत्यानाश कर रहा है। जी। नहीं जुनैद साहब, कभी अल्लाह के फजल से गलत काम नहीं किया। सब्जी बेचता हूँ, सुबह मंडी से लेके आता हूँ, आज दोपहर तक सारा सौदा बिक जाता है तो घर चला जाता हूँ। सबसे बड़ा एतराज ये है कि तुम लोग रेट लिस्ट क्यों नहीं आवेजा करते। जी। जुनैद साहब, इस शाबे में तो सब्जी बड़ी मुश्किल से पूरी आती है, रेट लिस्ट में कहाँ पे लगाऊं? अब छोटे बच्चे को स्कूल से उठा के साथ रेट लिस्ट उसको पकड़ा के लेके रेट लिस्ट 15 केजी की होती है भाई, कहीं पे लगा लो, रेट लिस्ट यहाँ लगा लो, नियत होनी चाहिए तुम्हारी। नहीं जुनैद साहब, वो तो कोई बंदा पागल हो तो उसके गले में डालते हैं। सब्जी वाला बेचारा गले में डाल के कहा। सब्जी वाला आवाम को पागल किए हुए है ना। मैं समझा नहीं आपकी बात जनाब, पैसे ले लिया, सौदा देना है, पागल करने वाली इसमें कौन सी बात? दिन के मुख्तलिफ औकात में तुम लोगों का रेट मुख्तलिफ होता है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? जुनैद साहब, सुबह जब लेके आते हैं तो फिर रेट के मुताबिक बेच रहे होते हैं। किसी वक्त सौदा नहीं बिकता तो फिर इसलिए रेट गिरा देते हैं। अगर सब्जी ना बिकी, रात को गल जाएगी, सड़ जाएगी, दूसरे दिन बिल्कुल ही नहीं बिकेगी। बिल्कुल नहीं, दूसरे दिन तुम ताजा सब्जी ऊपर और गली हुई सब्जी नीचे रख के सब बेच देते हो। तो जुनैद साहब, अगर फिर सारा दिन भी रेट गिराने से भी ना बिके तो फिर दूसरे दिन बेचनी तो पड़ती है ना। अब फेंक के तो फिर गरीब आदमी ने खाना कहाँ से? हर बात का इसके पास एक ही जवाब होगा, तजावजात क्यों करते हो? गरीब आदमी है। बासी सब्जी क्यों बेचते हो? गरीब आदमी। महंगी सब्जी, गरीब आदमी। ये क्या जस्टिफिकेशन है? जाहिर है जी, गरीब आदमी हूँ तो कह रहा हूँ गरीब आदमी। अब अपना तारफ कोई जहांगीर तरीन तो नहीं ना कराना मैं। ਸਰ ਜੀ ਇੱਦੇ ਨੇੜੇ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਪਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। नहीं, आपको तो इसलिए पा का बताते हैं कि आपके लिए किलो भी पा ही है। और सर, अदरक की कीमत आसमान से बातें करने लग गई है। एक मिनट ठहर जाए जी। क्या हुआ? या अल्लाह खैर करना। लो जी, ये अदरक है जनाब, इसको माइक लगा के बेशक देख ले, अगर ये बातें करेगा तो मुझे अभी पकड़ो। अब महावरतन कह रहे हैं कि उसकी कीमत आसमान तक पहुंच गई है। केड़ा तन कह रहे हैं जी? महावरतन। बुलाया तुसी सब्जी वाला होया, गुफ्तगू तुसी और या मकबूल जान वाली कर रहे अदरक खाना, अदरक जरा किहो जे बेचना, अदरक खा रहे रह दियो जनाब, बांदर रास्ते बेकार हुंदा जी। देखो कितना तेज है, इसको मुहावरतन का नहीं पता और आपके वाले मुहावरे का पता है। सर जी, सारे नाल वड्डा फरार ते तुसी इहदे को पुछण नहीं डे। ए सब्जी नु पानी लाई जांदे ने, छट्टे लाई जांदे ने, भारी कर छड़दे ने सब्जी। हाँ बताएं। शाबाश है, तुसी रोज ना दियो जी। ना नहीं ते किन्ने को भारे हो गए हो?
ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੋਕਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਦਾ ਕਿ जरा सब्जी फ्रेश रहे। पानी तो इतना लगाते हैं मत मार देते हैं सब्जी की। आम मिर्च को पानी लगा लगा के शाम तक शिमला मिर्च कर देते हैं। अच्छा, एक और हरकत तुम लोग ये करते हो कि जो माशरे में असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनके लिए खास तौर पे अच्छी क्वालिटी की सब्जी छुपा के अलग रखी होती है। आज तो वो पैसे ज्यादा देते हैं तो फिर उनको सौदा भी वैसे नहीं, वो रोब की बुनियाद पे लेते हैं तुमसे। नहीं जुनैद साहब ये बात नहीं है, रोब से सिर्फ थाने वाले ही लेते हैं। आप बंदा जिसके पास पैसे है वो कहता है यार 4 पैसे वध ले ली सब्जी मिलू चंगी तभी, तो फिर चंगी उनके लिए निकाल लेते हैं। और चलो भाई जो ज्यादा पैसे नहीं देता उन्हें बहुत अच्छी सब्जी ना सही बुरी भी तो ना दो। ये परसों आप लोग भिंडी दे के गए उसमें से कीड़े निकल आए जी। तो भिंडी चो कीड़ा ही निकलना और भिंडी चो बेक निकलनी। तो मैं सब लोगों को वैसे ही आदत पै गई जो लेवे शिकायत करन दी। जिन्हें तुरने है तो वाकई गरीब है। कितनी देर में इसका चक्कर पूरा होने सब्जी बासी हो जाएगी। ये तो आपके कहने पे इधर लगा लिया सब्जी। जितना तेरा छापा है जो सब्जी ना लाया कर आंडे ला ला इथे। जानी आंडे ला लवा बताऊ ना लावा जिन्ना नल ताड़ी बनदी। इतना कि छापा है तो मुंडे दा ब्याह कीता ते कनोपी लाई। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ। ਆਲੂ ਲਾ ਟੀਡੇ ਲਾ ਕਰੇਲੇ ਲਾ ਧਨੀਆ ਲਾ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਫੂਲ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लतीफा खुद को सुना रहा हूं तो मेरी मर्जी। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला, अब आ रहा हूं कि जा रहा हूं तो मेरी मर्जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिक्र कर दिया जाए अतर शाह खान जेदी मरहूम का। बहुत बड़े आदमी थे और बाकायदा उस्ताद आदमी थे। बिल्कुल। जिस फील्ड में भी, परफॉर्मिंग आर्ट के जिस शोबे में भी या आर्ट के जिस भी शोबे में गए हैं, बाकायदा उस्तादों वाला काम किया है और उस्तादों वाला रवैया रखा है। बिल्कुल सही। थिएटर में मैं पहले भी एक दफा जिक्र कर चुका हूं कि जो पाकिस्तानी सकाफत से जुड़ा हुआ ओरिजिनल थिएटर जो था ना जी, पाकिस्तानी सकाफत का, उसमें लिखने वाले जो उसका आगाज करने वाले लोग हैं, उसमें सरे फहरिस्त अतर शाह खान जेदी का नाम आता है। उससे पहले अगाथा क्रिस्टी या शेक्सपियर के तर्जुमे और एडॉप्टेशन, ट्रांसलेशनें वगैरह चलती थी और फिर ये आगा हशर जो हैं वो परफॉर्म किए जाते थे। मगर पाकिस्तानियत, पाकिस्तानी कल्चर टिपिकल ये अतर शाह खान जेदी मरहूम, सूफी निसार साहब मरहूम, फिर इफ्तिखार हैदर मरहूम, फिर मुनीर राज साहब अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, ये लोग बहुत बड़े लोग हुए हैं। अतर शाह खान जेदी का नाम इनमें सरे फहरिस्त रहा है। सारे ड्रामे सुपर हिट लिखे हुए हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो इतवार वाले दिन सुबह 10-11 बजे इनका वो रेडियो पे जो प्रोग्राम लगता था, तो हम सारे अहले खाना सब बहन भाई इर्द गिर्द इस तरह इकट्ठे होकर सुना करते थे और दिल में दुआ करते थे कि या अल्लाह अभी ये प्रोग्राम खत्म ना हो। इतना दिलचस्प होता था कि ये चलता रहे चलता रहे। मैं कहता हूँ जी कि रेडियो पे बहुत बड़ा काम किया हुआ है, बहुत कमाल फैनशिप थी। और रेडियो पे हंसाना कितना मुश्किल काम। जी जी जी। रेडियो के अलावा टेलीविजन के ऊपर बेहतरीन काम किया हुआ है, बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है, बेहतरीन लिखा हुआ है। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने इनका लिखा हुआ ड्रामा थिएटर में भी बेशुमार। अच्छा जी जी। खतरा 440 वोल्ट, फिर बेवकूफ, फिर चिड़ियाघर, कितने सारे। बेवकूफ तुम्हारे लिए लिखा था उन्होंने? नहीं वैसे पूछा। यानी मैं एक उस्ताद की बात कर रहा हूँ, उसको मेरी पड़ गई है। यार मेरे आगे जहां और भी हैं, लेकिन मेरे लिए जहां तुम ही हो। ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। और ये जेदी साहब की ऐसी तहरीर थी कि आज भी ये ड्रामे अगर लगा दिए जाएं तो उसी तरह ही मकबूलियत हासिल। भाई जी मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ कि पौड़ा थिएटर उनके ड्रामों में से चोरी करके लिखा गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं गवाह हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है। उनका ड्रामे हमने किए हुए हैं, इसलिए
बहुत सारे बाद में ड्रामे ऐसे लिखे गए जो उनकी सिचुएशंस, उनके किरदार इस्तेमाल किए गए। जी जी। फिर फिल्म भी लिखी है जिसमें जेदी मशहूर हुए थे, वो ड्रामा कौन सा था इनका, मतलब जेदी मशहूर? रेडियो से जेदी है, क्योंकि जो रेडियो में करते थे उनमें उसका नाम उनका नाम अदर शाह खान जेदी होता था जी। रेडियो के ऊपर, बल्कि रेडियो के प्रोग्राम में ही इनका नाम जो है किरदार का जेदी रख के तो इन्होंने वो प्रोग्राम किया। उसके बाद जेदी इनके नाम का हिस्सा ही बना। क्या बात। अच्छा। और फिर जहां भी गए लोगों ने जेदी के नाम से फिर टीवी पे भी उन्होंने एक सीरियल की थी, उसमें भी उनका हाय जेदी नाम था। यार लाखों में तीन एक लाखों में सीरियल तीन। था, बहुत हिट सीरियल, उसके ये राइटर भी थे खुद। बर्गर फैमिली। हाँ, बेशुमार ऐसे ड्रामे जो लिखे भी और उनमें काम भी किया एज अदाकार भी। और फिर मैं ये समझता हूं कि उर्दू जुबान में जो मजा है ना जी, उसका भी ये आगाज करने वाले शख्स। क्या बात। जो उससे पहले जो राइटर मशहूर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, वो बड़ा ही सीरियस और बड़ा प्यारा, बहुत बड़े वो राइटर हुए हैं, नो डाउट बहुत बड़े राइटर हुए हैं ख्वाजा मोइन साहब। जी जी। मगर मजाक जो है ना जी, वो जेदी साहब ने ही मेरा ख्याल है सबसे पहले जो लिखा टूटी है। फूटी अंग्रेजी बोलने वाला है, जो मिजाज था, वो कमाल का करते थे। इस तरह के वो लफ्ज बोलते थे कि जैसे मतलब नाजिल हो रहे हो और वो परो रहे हैं उसमें ना। जी 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 जी। ये कमाल अहमद रिजवी साहब और ये लोग, ये दोनों मेरा ख्याल है, इनका मुझे नहीं पता कि कमाल साहब ज्यादा सीनियर ही होंगे, जी। मगर ये भी उसी दौर के लिखने अच्छा, वाले हैं। एक इनकी शख्सियत के बारे में इंकशाफ उनके इंतकाल के बाद मुझ पे भी हुआ है कि अतर शाह खान साहब जो मरहूम, वो मेरे सुपर 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 सीनियर थे। उन्होंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए जर्नलिज्म किया हुआ, मुझे पहले नहीं पता था इस बात। नहीं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े प्यारे आदमी। और फिर मज़ाहिया शायरी के हवाले से शायरी बहुत अच्छी। जिस मुशायरे में भी जाते थे लूट लेते थे। बाकायदा मुशायरे के डाकू मशहूर थे। मज़ाहिया मुशायरा जहां भी होता था, इनको जहां भी इनवाइट किया जाता था, बाकायदा सारे शायर जो हैं वो ये समझ लेते थे कि भाई यहाँ तो अतर शाह जेदी साहब आए हुए हैं, इन्हीं कोई लोग मजा ही निकालेंगे, इन्हीं को सुनेंगे। बल्कि आजकल उनका वो कलाम बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बाद, वो बहुत हाला पुराना है वो, मगर वो नेट पे इस कदर मशहूर हुआ है, वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं तो मेरी मर्जी, लतीफा खुद को सुना रहा हूं तो मेरी मर्जी, मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला, अब आ रहा हूं कि जा रहा हूं तो मेरी मर्जी, ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर में, मैं झाड़ू दे के हटा रहा हूं तो मेरी मर्जी। बड़े बड़े प्यारे कमाल के। ताक झांक के नाम से उनकी शायरी का मजबूआ भी आ चुका है। जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और बड़ा आला मुकाम अता फरमाए अल्लाह पाक। अब दूसरी एक बात आज बड़ी जरूरी ये करनी थी कि हम डॉक्टर्स को भी इस कोरोना वायरस की वबा जो फैली हुई है उसमें जो तगोदो हो रही है, वो डॉक्टर्स को भी हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, नर्सों को भी हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी फौज को भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जरूर पुलिस को, खास तौर पे पाकिस्तान की हमारी ये जो पुलिस खास तौर पे, इनको बहुत अप्रिशिएट इसलिए करूंगा कि ये सड़कों के ऊपर ये तो बिल्कुल ही फ्रंट पे ये भी लड़ रहे हैं। बेशुमार लोग जो सड़कों पे फिर रहे हैं और उनको चेकिंग करना और देखना कि ये डिस्टेंस में है, ये सोशल डिस्टेंस कायम है, गाड़ी भरी तो नहीं हुई लोगों की, और ये पुलिस वाले भी। और फिर कई पुलिस वालों को बेचारों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया, इस वजह से ये मेहनत करते हुए कौम की 24 घंटे सड़कों पे रहना, उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव्स हैं, उनको देखना जी हाँ, करीब से तो और जी अभी तक 6,623 पुलिस एहलकारों के कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें से कुछ 2,200 एहलकारों की रिपोर्टें आई हैं। 163 एहलकारों के जो बेचारियों के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो फिर भी ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं ये पुलिस के जवान, और बड़ी बात है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है कोई इनको कोई ऐसी मुराद या ऐसे लिबास भी नहीं दिए गए, बल्कि मैं एक दिन दोस्तों के साथ मैंने कुछ जगह पे देखा कि फौजी जवान भी खड़े हैं और पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो फौजी जवान जो हैं उन्होंने वो जो लिबास है कोरोना वायरस से बचने वाला, क्या उसे हम कहेंगे एहतियाती तदाबीर, किट सी वो पहनी हुई है। तो पुलिस वाले वैसे ही खड़े हैं, उनको अपने महकमे की तरफ से इतना भी नहीं लिबास ही दे दिया जाए। तो सलाम पेश करता हूं मैं पाकिस्तान की अपनी पुलिस को, पुलिस के महकमे को, कि वो भी इस परेशानी में, इस जंग में
बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़े आवाम के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका भी, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह पाक हुक्मरानों को ये भी तौफीक दे कि ये पुलिस के महकमे में भी इंसान काम करते हैं। हाँ जी। इनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उसका भी बजट कुछ मुख्तस करें और इनको भी वो किटें शिटें दें और इनके लिए भी तनख्वाहों में कोई जो मुराद दूसरे महकमों में मिल रही हैं एक्स्ट्रा वो इनको भी जरूर दी जाए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि जब हम अपना दर्द महसूस करें तो हम जिंदा हैं, जब हम दूसरों का दर्द महसूस करें तो हम इंसान हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।